Good evening, sir. Good evening. Range of a function. What is range of a function? लिखो range of a function. Range of a function is values of y corresponding to values of y corresponding to the domain of the function. Range of a function is the set of values of y corresponding to the domain of the function. So we have already seen how to find domain of a function of various types. Now we'll see how can we find range of a function. Some function you can find the range simply by by observation. Like if you have a function y is equal to f of x is equal to x square, y is equal to f of x is equal to mod x, y is equal to f of x is equal to 2x plus 5, y is equal to f of x minus 4x plus 10 when x is greater than or equal to 3. Now the first function is y is equal to f of x equal to x square, which is a perfect square. So by simple observation, we can know that what will be the range? X square is a perfect square, and any perfect square is always greater than or equal to 0. Value of a perfect square is always greater than or equal to 0. ये लिख लेना, बहुत काम आएगा. A perfect square is always greater than or equal to 0. So that would mean x square is greater than or equal to 0. But what is x square? X square is y. Y is greater than or equal to 0. That means what is the range of the function? Range of this function would be all values which are non-negative, 0 to infinity. All values which are from 0 to infinity. So by simple observation, we could know that what is the range of the function. Range of the function is set of values of y corresponding to the domain of the function. हर पॉलिनोमियल का डोमेन R होता है, लिख लेना ये. पॉलिनोमियल का डोमेन इज ऑलवेज R. पॉलिनोमियल का डोमेन R होता है, तो डोमेन इज अंडरस्टूड. रेंज इज वैल्यूज ऑफ y. यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? परफेक्ट स्क्वायर. सिंस वी आर डीलिंग विद रियल नंबर्स, किसी भी रियल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. या तो वो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, राइट. सेकेंड फंक्शन है ऑलरेडी मालूम है, मॉडुलस ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो इसका रेंज कितना होगा? R. दैट इज minus infinity to infinity. Modulus of a function is always positive. Therefore, its range would be minus infinity to plus infinity, all real values. What about the third function? थर्ड फंक्शन का कैसे निकालोगे डोमेन? सॉरी, सर रेंज. एक चीज पूछनी थी. बोलो. ये जो मॉड वाला है इसके अंदर तो एड से पॉजिटिव ही आएगा ना उसके बाद, तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए? Oh, yes, I missed out this. Will be
इट इज ऑलवेज द डोमेन आर होगा, रेंज विल बी जीरो टू इंफिनिटी, है ना? यस। जीरो तो पॉसिबल है। सेकंड में क्या हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है? इन द थर्ड वन इट इज अगेन ए पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का डोमेन कितना होता है? डोमेन इज एनी पॉलिनोमियल, डोमेन इज ऑलवेज आर। मतलब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है 2x+5 की वैल्यू। पूरी इन इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इन्फिनिटी, दिस विल बी 2x एंड दिस विल बी इन्फिनिटी। पूरी इन इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नथिंग वुड हैपन बिकॉज infinity is something not defined. If you multiply or divide by 2, nothing happens to it. Then you can add 5 to entire in equation. Again, nothing would change in infinity or minus infinity. ये सेम रहेगा, लेकिन दिस इज नथिंग बट y। मतलब जो y की वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। इसका मतलब इसका रेंज r हो गया। वैसे भी अगर हम इसका ग्राफ देखें तो क्या होगा? y इज इक्वल टू x+5 इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना? इट्स स्ट्रेट लाइन which is inclined straight line like this, and this line extends right from minus infinity to plus infinity। ग्राफ को देख के भी हमें पता लग जाता है x की भी सारी वैल्यूज पॉसिबल है, y की भी सारी वैल्यूज पॉसिबल है। दैट मीन्स दिस इज अगेन r। इसका r हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। सी, यहां पे मेंशन्ड है कि इसका डोमेन कितना है। इसको यूज करके हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। करना है जरा। फोर्थ क्वेश्चन में डोमेन हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज x ग्रेटर देन 3, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें रेंज अकॉर्डिंगली ही निकालना पड़ेगा बिकॉज रेंज इज वैल्यूज ऑफ y corresponding टू वैल्यूज ऑफ x बिगर देन और इक्वल टू -2। ग्रेटर देन। -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, हाँ, तो यहीं से शुरू करते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है, इस इन इक्वेशन में -4 से मल्टीप्लाई करो। -4 से मल्टीप्लाई किया, when you multiply in an equation by a negative sign, it inter reverses, ये रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? मैंने इसको -4 से मल्टीप्लाई किया, इन इक्वेशन चेंज हो गई। उसके बाद 10 ऐड कर दो, -4x+10 ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। 10 ऐड कर दिया, दिस इज y इज लेस देन और इक्वल टू -2। y की वैल्यू आ गई। जो हमें डोमेन दे रखा था उसके कॉरस्पॉन्ड से ही हमने y निकाल लिया। हमें चाहिए था -4x+10, हमें दिया था x मोर देन 3। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन और इक्वल टू -2। इस फंक्शन का रेंज कितना हो गया? इसका रेंज हो गया माइनस इंफिनिटी टू -2 क्लोज इंटरवल। तो सम क्वेश्चंस वी कैन फाइंड द रेंज बाय सिंपली ऑब्जर्विंग द फंक्शन। उसको देख के ही पता लग जाता है उसका रेंज क्या होगा। नॉट मच वर्किंग आउट इज रिक्वायर्ड, वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस ओनली। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? चिराग, अनुज, अविका? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसमें लिख लिया। हम्म।
फाइंड रेंज इन ईच केस। ट्राई करो। हम्म। किसको? हाँ, रेंज बताना है, वाई की वैल्यू बतानी है। You have 10 minutes. Take your own time. You can write your answer in the chat box. ग्राफ बना के करना है तो वैसे कर लो, एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है एल्जेब्रिकली कर लो, आराम से, देयर इज नो हरी। मॉड का भी मालूम है क्या था, मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। वैसे शुरू करो, यहाँ पे मत रखो, इसको ऐसे करो। मॉड एक्स होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसे स्टार्ट करो। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये टर्म लानी है, तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करोगी, रिवर्ट हो जाएगा। फिर 10 चाहिए, ठीक है, ये वाई बन गया, आ गया। ऐसे करना है। हम्म। इसमें तो डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था, डोमेन दिया था कि भाई डोमेन इज एक्स मोर देन 3 था, है ना। यहाँ से शुरू करते हैं, दिखाओ। तो मुझे ये चाहिए, बिकॉज ये वाई है, तो मैं इसको -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन इक्वेशन रिवर्स हो गई माइनस से। फिर आई वांट 10 ऑल्सो, दोनों से 10 ऐड कर दिया, ये वाई बन गया। वाई इक्वल टू था ना ये, तो ये आ गया वाई की वैल्यू -2 से छोटी हो गई, तो मतलब इसका रेंज हो गया माइनस इन्फिनिटी टू -2 क्लोज इंटरवल। इसमें कुछ दे नहीं रखा था, इसमें आर हो गया था, ये दे रखा था, इसमें डोमेन रेस्ट्रिक्ट था, एक्स 3 से हमेशा बड़ा है। तो मतलब एक्स, डोमेन एक्स होता है ना, तो डोमेन रेस्ट्रिक्टेड था, तो हमें यहीं से शुरू करना था। जबकि इस वाले में क्या था, इसमें हमें दे रखा था एक्स की वैल्यू आर है, 2 से मल्टीप्लाई करो, इन्फिनिटी का तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ऐड करके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से वाई आ गया था वो, इस वाले का, ये वाले करो। फिफ्थ हो गया सभी का, मेरा। यस। मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, सबको मालूम है, लेकिन ये माइनस मॉड एक्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इन इक्वेशन रिवर्स हो गई। फिर चुपके से 10 ऐड कर दो, बिकॉज वी वांट दिस ऑल्सो। ये बन जाएगा वाई, वाई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 आ गई। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा है, हम्म, माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल होता है, 10 वुड बी इन द क्लोज ब्रैकेट। अनुज, सिक्स वाले का क्या आंसर है? सर -3 to 3। यस, वी ऑल नो दैट साइन की वैल्यू हमेशा 1 एंड -1 के बीच में होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज साइन एक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता, तो मतलब 1 से वैल्यू कभी भी बड़ी हो ही नहीं सकती। अब हमें चाहिए 3 sin x, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया,
राइट। सपोज तुम्हें इसका ग्राफ भी बनाना हो तो फिर क्या करोगे? बड़ा सिंपल है। तो इसका रेंज आ गया -3 to 3। somebody asks you plot the graph, तो we know the graph of sine। साइन का ग्राफ सबको मालूम है, this is the graph of sin x। सिंस इसका रेंज -3 to 3 है, तो ये हो जाएगा -3, हो जाएगा 3, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई। इट्स पीरियोडिक फंक्शन, रिपीट लाइक दिस। सो रेंज, ऑड इवन, पीरियोडिक फंक्शन, इससे हमें पता लग जाता है, हम ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट करो। रेंज 7 का क्या बताओ रायन? माइनस -12 5 किसका बताया रायन? सब बताया तो 7 का, बट आई एम नॉट श्योर। नहीं, वो गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। सेवेंथ क्वेश्चन में साइन भी है, कॉस भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, वी बेसिकली कन्वर्ट इट इनटू अ रियल सिंगल साइन और कोसाइन फंक्शन। ठीक है, सिंगल साइन कोसाइन फंक्शन में कन्वर्ट कर लो इसको। कैसे करोगे? मैं तुम्हें जनरलाइज इसका मेथड बताता हूँ। ऐसे जब भी क्वेश्चंस आएंगे, एक मास्टर ब्लास्टर बना लेते हैं। सपोज वी हैव a sin x प्लस b cos x, और हमें इसका रेंज बताना है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब साइन मैक्सिमम होगा तो कॉस मिनिमम होगा, एंड वाइस वर्सा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते साइन की मैक्सिमम वैल्यू ली, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू उनको ऐड कर दिया, दैट कांट बी डन। सो वी आइडेंटिफाई कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, उनको आइडेंटिफाई करके स्क्वायर करके ऐड करके उनका रूट निकाल लो। जो भी साइन कॉस का कोएफिशिएंट है उसको स्क्वायर करो, ऐड करो, रूट निकालो। आफ्टर दैट डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय दिस नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय द सेम। √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करो और उसी से डिवाइड कर दो। लिख लो, ये काम आएगा मेथड। दिस विल हेल्प यू इन इंटीग्रेशन ऑल्सो। सम क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन यू कैन इजीली आंसर यूजिंग दिस मेथड। तो हमने क्या किया, यहां तक बात समझ में आ गई? द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई कोएफिशिएंट ऑफ साइन एंड कॉस। सेकेंड स्टेप, square them, add them and take the root. थर्ड स्टेप, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है अविका? Yes. अब जरा इस ट्रायंगल को देखो। ये राइट ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर बी है, बेस ए है, और इसका हाइपोटेन्यूज a² प्लस b² है। इस राइट ट्रायंगल में टेल मी व्हाट इज a/√a² प्लस b²? इस राइट ट्रायंगल में cos theta परफेक्ट, तो उसको मैं cos थीटा लिख देता हूँ। व्हाट इज b/√a² प्लस b²? sin theta नाउ दिस आइडेंटिटी यू नो, ब्रैकेट के अंदर जो आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है ये? जोर से बोला करो। साइन a प्लस बी, माइनस नहीं आएगा, कॉस में आता है, प्लस है ना यहाँ पे। तो हमने साइन कॉस के कंबाइंड फंक्शन को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इसका क्या फायदा हुआ? इसका ये फायदा हुआ दैट द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बिटवीन 1 एंड -1। इसकी वैल्यू -1 1 के बीच में होती है। इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बिटवीन
y belongs to under root of a square plus b square with negative sign and root of a square plus b square. तो इसका एक तुम्हें रेडीमेड मास्टर ब्लास्टर मिल गया. यस, जब भी ये क्वेश्चन होगा इसका रेंज ही आएगा. इसको तुम अब डायरेक्टली यूज कर सकते हो. दिस विल हेल्प यू इन सम क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल. इसका आंसर है माइनस. अब इसमें यूज कर लो तुम. 5 स्क्वायर ए है, बी है -12, दोनों को स्क्वायर करके रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 13 आएगा. 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का सम होता है 169. 169 का रूट हुआ 13. यू नो द आंसर क्या आएगा इसका. तो सेवेंथ का आंसर है -13 प्लस 13. क्या हुआ ईरा, तुमने आंसर लिखा था फिर तो हटा दिया? सर एक्चुअली आई रीजॉइंड बिकॉज मेरे अच्छा. दोनों डिवाइसेस से समहाउ कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, तो आई वाज जस्ट ओके, चेकिंग, तो वो आई ऑल थिंक राइट. तब गया. ये समझ में आ गया ना सेवन सभी को? ये रिजल्ट याद कर लो. नाउ दिस रिजल्ट यू कैन यूज इन एट्थ ऑल्सो. कैसे? एट्थ में थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो रहा है. जरा एट को देखो अब. एट्थ क्वेश्चन में वी हैव y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x प्लस c. ये तो आ रहा है. c कांस्टेंट नंबर है. तो इसमें क्या होगा, इसी रेंज में तुम्हें क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में ऐड कर दो. इसमें भी ऐड कर दो c को, कांस्टेंट टर्म को, और मैक्सिमम वैल्यू में भी c को ऐड कर दो. सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, c रूट के बाहर है. You have the range. Hmm. तो c की वैल्यू 12 है. हाँ, c अंडर रूट के बाहर है. तो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 हो गया इसका, तो है ना. तो इसका आंसर आएगा -5 प्लस 12 कॉमा +5 प्लस 12. दैट इज 7 to 17. यही है ना? 7 to 17. देवेशी क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? टेंशन नॉट. टेंशन लेने का नहीं है, देने का है. देखो मेरा हंस रही है. क्वेश्चन से भिड़ जाओ. मैथ्स में यही गए. मैथ्स से भिड़ जाओ, कुछ खाओ पियो ताकि सेहत अच्छी रहे. भिड़ोगे तो मैथ्स हो जाएगा फिर. ऑल राइट, टिल एट एवरीथिंग इज फाइन. नाइन्थ क्वेश्चन को जरा देखो. इसमें स्क्वायर आ रहा है. 16 tan स्क्वायर एक्स, 9 cot स्क्वायर एक्स. tan की भी मैक्सिमल इन्फिनिटी होती है, cot की भी मैक्सिमम इन्फिनिटी होती है. तो अब क्या करना चाहिए? इसके लिए कुछ जुगाड़ करते हैं हम लोग. ये सारा हटा दूं, हो गया ना ये तो. Suppose we have two positive numbers. A and B are two positive numbers. Positive real numbers मान लो. तो मुझे एक बात बताओ, रूट ए डिफाइंड होगा, रूट बी भी डिफाइंड होगा,
और उनका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या होगा हमेशा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको जरा ओपन करो आइडेंटिटी से, a माइनस बी होल स्क्वायर से। सो व्हेन यू ओपन इट, इट विल बी a प्लस बी माइनस 2√ab, ये आएगा। और a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2√ab, ये हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को देख के कुछ कुछ होता है, रिकॉल करो वंस अपॉन ए टाइम, किसी जमाने में तुमने ये पढ़ा था। यस, याद आ रहा है किसी को, चिराग? Arithmetic mean है। यस, arithmetic mean of two positive numbers is always greater than or equal to the geometric mean। बहुत काम की चीज है ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो कागज में लिख के ताबीज बना के गले में टांग लेना, बहुत काम आएगा ये। दो पॉजिटिव नंबर का अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा। इक्वल कब होगा? व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। अगर दो नंबर सेम होंगे तो उनका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होते हैं। ठीक है, ये यूज करेंगे आप। So you can use it over here. तो कैसे यूज करते हैं इसको जरा देखो। इसको ए ले लो, इस पूरे नंबर को बी ले लो, बिकॉज ए एंड बी को पॉजिटिव होना जरूरी है, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, एंड अप्लाई दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या आएगा? ए इज 16 tan square x, b 9 cot square x divided by 2 greater than or equal to 16 tan square x into 9 cot square x, right? tan and 9, tan and cot, इनकी दुश्मनी है आपस में, कट गए, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या आंसर आ गया? 4 3 12 इंटू 2 24। तो जब भी कोई रेंज का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है, यू कैन यूज दिस। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो नाइन्थ क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू 24 आ रही है, तो रेंज क्या हो गया इसका? इस फंक्शन का रेंज हो गया 24 टू इंफिनिटी, बिकॉज मैक्सिमल तो इंफिनिटी होगी ना, tan की मैक्सिमल इंफिनिटी होती है, कॉट की इंफिनिटी होती है। ऑल राइट, नेक्स्ट, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x। करो ट्राई खुद से। मॉड साइन तो बहुत सिंपल है, ग्राफ से ही पता लग रहा है, वैसे ही पता लग रहा है। साइन एक्स हमेशा होता है 1 एंड -1 के बीच में। तो अगर तुम मॉड ले लोगे तो नेगेटिव वैल्यू तो हट जाएगी ना, 0 1। मॉड लेने पे अगर तुम ग्राफिकली देखोगे तो कल ही तो लास्ट टाइम तो किया था, नेगेटिव पार्ट जो है ग्राफ का वो फ्लिप हो जाएगा ना ऊपर,
सो नेगेटिव पार्ट विल फ्लिप ओवर, तो पॉजिटिव हो जाएगा इस तरह से। तो आंसर इज 0 to 1। 0 to 1 बोथ विल बी इंक्लूडेड। 11th कैसे करोगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया था ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसका। x² + 6x + 5। या मैंने क्वाड्रेटिक का तुम्हें स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया था रेंज का? नहीं, नहीं बताया। चलो पहले परफेक्ट स्क्वायर से करो। यूज कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। हर क्लास के बाद जो पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। रिलेशन फंक्शन सेट्स का तुम्हारा टेस्ट भी होने वाला है। ओके चिराग, परफेक्ट स्क्वायर मैंने बताया था कैसे बनता है, लास्ट टाइम भी हमने किया था डिस्कस ये। कोएफिशिएंट ऑफ x² होना चाहिए 1, वो ऑलरेडी है। आइडेंटिफाई कोएफिशिएंट ऑफ x, वो कितना है 6। 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 3। फिर उसका स्क्वायर करो, जो भी नंबर आएगा उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो x² + 6x + 9 -9 + 5, तो जो पहले 3 नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली x + 3 का होल स्क्वायर -4, ये आ गया। अब हमने परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाया, उसका क्या रीजन था वो भी समझ लो। बिकॉज वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है ना? वी नो दैट अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होता है। तो x + 3 का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा, लेकिन इसमें -4 भी है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को -4 कर देते हैं। ये हो गया y, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 आ गया। मतलब रेंज पता लग गया तुम्हें, क्या है इसका आंसर फिर? -4 to infinity। तो दिस इज -4 to infinity। अब मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक के ना कुछ और बताता हूँ कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक वालों को। डायरेक्टली रेडीमेड फॉर्मूले से कैसे करते हैं, वैसे डिटेल में तुम क्वाड्रेटिक में बाद में करेंगे सही। बट इन केस यू हैव a quadratic equation, then how do you find the range without making perfect square? So if you have a function ax² plus bx plus c and a is positive, ठीक है, a पॉजिटिव है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। a अगर पॉजिटिव है इट विल बी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, विल डिस्कस लेटर ऑन। तो इसका जो रेंज होगा ना हमेशा वो होगा -d, d is discriminant by 4a
कॉमा इन्फिनिटी, याद कर लो। इन ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, रेंज वुड बी माइनस डी बाय 4a टू इन्फिनिटी। हम क्वाड्रेटिक जब करेंगे तो इसको और डिस्कस करेंगे डिटेल में। और लेकिन अगर ए नेगेटिव होगा तो उस केस में रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाय 4a। ये लिख लेना। डी तुम्हें मालूम है क्या होता है? डी इज डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इसको यूज करके भी हम इसको आंसर कर सकते हैं। कैसे करोगे? देखो, इस क्वेश्चन में ए कितना दे रखा था? मैं 1, बी दे रखा था 6, सी दे रखा था 4। डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी कितना आ गया? 20। Sir, C is 5. अच्छा सॉरी, सी, हाँ, कितना हो गया? 20, 16 आ गया। तो डी 16 आ गया। तो अब रेंज क्या निकलेगा? ए पॉजिटिव है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो माइनस डी, डी इज 16 बाय 4a, ए इज 1। स्ट्रेट अवे तुम्हारा आंसर आ गया -4 टू इन्फिनिटी। यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। अर्शिया, उसका रूट नहीं निकालना था भाई। वो तो तब था व्हेन द टर्म इज द डिनोमिनेटर। अगर ये होता 1/x² प्लस 6x प्लस 5, तब होता, उसका डोमेन होता, वो भी हमें रेंज निकालना था। Got it, sir. So this is when you have a quadratic expression, we can directly use the formula. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में इसका हम ग्राफ भी बनाएंगे। डोमेन तो बड़ा इजीली निकल आएगा। इट इज अ रैशनल फंक्शन। तो अगर इसका डोमेन निकालना होता तो बड़ा सिंपल था। डोमेन आ गया, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, है ना, यही आएगा। x नॉट इक्वल टू -4/5। डोमेन आ गया r की ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट -4/5। ये इसका डोमेन है। अब समटाइम्स रेंज रैशनल फंक्शन क्या या कुछ कोई क्वाड्रेटिक है स्क्वायर रूट में, तो इफ यू रिमेंबर, तुम लोगों ने इनवर्स फंक्शन कर लिया होगा। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का डोमेन साइन इनवर्स का रेंज बन जाता है। साइन एक्स का डोमेन साइन इनवर्स का रेंज बन जाता है, एंड वाइस वर्सा। तो इफ यू हैव अ फंक्शन एफ और उसका मुझे रेंज निकालना है, रेंज डायरेक्टली पता नहीं लग पा रहा, तो हम क्या करते हैं, पहले इनवर्स निकालते हैं फंक्शन का, और फिर इनवर्स निकालने का उसका डोमेन निकाल लेते हैं, बिकॉज डोमेन निकालना इजी होता है। तो इनवर्स फंक्शन का डोमेन विल बी द रेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, ये हो जाता है। तो अगर कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 2x माइनस 7 और 5x प्लस 4, तो उसका इनवर्स निकाल लो। इनवर्स कैसे निकलेगा? राइटिंग x इन टर्म्स ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसका इनवर्स निकालो पहले एक बार। x को y के टर्म में लिखा लो। नहीं नहीं, तो ऐसे कर लो, डायरेक्ट करना है। मल्टीप्लाई करो एंड देन x को निकालो y के। अभी तो लिखा है y इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x, यू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5xy प्लस 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, ठीक है। x की टर्म एक साइड में कर लो, 5xy माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 4y। x कॉमन आ गया, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस, इधर से कॉमन ले लो ताकि उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनवर्स फंक्शन क्या आएगा जरा देखो, इनवर्स फंक्शन आ गया x इज इक्वल टू 2 माइनस 5y, नहीं 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5y, यही है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने x को निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y। सो व्हेन यू राइट y इन टर्म्स ऑफ x, वो तो फंक्शन था, ये f था, f ऑफ x था ये क्या बन गया, ये इनवर्स फंक्शन हो गया। दिस इज द इनवर्स फंक्शन f इनवर्स। अब इसका डोमेन निकालना बहुत इजी है इनवर्स का। क्या आएगा इसका डोमेन, इसका डोमेन होगा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, -5y नॉट इक्वल टू -2, y नॉट इक्वल टू 2/5। तो y की वैल्यू क्या हो गई, r माइनस 2/5। तो दैट्स द आंसर, r माइनस 2/5। 5/2 नहीं होगा, 2/5 है। अर्शिया, अविका, यू आंसर इज करेक्ट। अब कैन यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ट्राई करो। डोमेन पता है, रेंज पता है, और डिफरेंशिएशन तुम लोगों ने कर लिया है ना। डिफरेंशिएट करके देखो, बताओ मुझे क्या आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन, बिकॉज डिफरेंशिएशन से पता लग जाएगा फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। एक बार ये समझ लो और फिर इसको डिफरेंशिएट करके बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। डिफरेंशिएट, फाइंड dy बाई dx। डिफरेंशिएशन कर लिया है थोड़ा सा, मतलब ये तो बेसिक है, क्वेश्चन रूल तो कर लिया होगा ना, करो। तुमने कर लिया है? हम्म, फिर क्या हो रहा है अभी, बस वही चल रहा है जब से। डिफरेंशिएशन हो गया, करो डिफरेंशिएट करो, क्वेश्चन रूल लगेगा इसमें, u बाई वी वाले फॉर्मूले से करो। क्या रहा dy बाई dx, किसे मैंने नहीं किया। 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज, ये हो गया 2 माइनस, ओके, एंड देन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विच इज 5। ओपन कर दो, कितना आ रहा है, 8 माइनस प्लस 35, 43, 43 डिवाइड बाई 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही आ रहा है सभी का डेरिवेटिव। अर्शिया, असमी, यही आ रहा है। सर अभी मैं कर रही थी, सॉरी। चलो, इतना बड़ा डेरिवेटिव थोड़ी है, तो मैं डिफरेंशिएशन में ये हाल है तो इंटीग्रेशन में हमारा क्या होने वाला है, फिर तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा बिल्कुल।
अभी प्रैक्टिस कर लूंगी मैं। हाँ, डिफरेंशिएशन तो करो। यू बाई वी वाला रूल लगा दिया ना। मुझे लगता है तुम्हें 12th वाले बेसिक असाइनमेंट भी देने पड़ेंगे। सो डेरिवेटिव जो है बेसिकली वो पॉजिटिव आ रहा है ना। डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसे इंक्रीजिंग फंक्शन, ग्राफ ऊपर जाएगा, हमें पहाड़ पे चढ़ना है। तो डेरिवेटिव से हमें ये फायदा हो गया, हमें पता लग चुका है पहाड़ पे चढ़ने की बारी आ चुकी है। और ये जो फंक्शन है कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है वो जरा देखते हैं। ग्राफ देखो कैसे बनता है। डोमेन क्या था इसका? r -4/5, मतलब द मोमेंट x की वैल्यू -4/5 हो गई तो फाउल हो जाएगा, तूफान आ जाएगा। मतलब इसका ग्राफ कभी भी -4/5 को टच नहीं करेगा, ये पता लग चुका है हमें। रेंज क्या था इसका? रेंज था r -2/5। मतलब y की वैल्यू 2/5 कभी नहीं हो सकती। तो एक लाइन ड्रॉ करो y = 2/5 वाली। एनी लाइन विच इज y = कांस्टेंट हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी। एनी लाइन विच इज x समथिंग वो y के पैरेलल होगी। तो ये भी नहीं हो सकती वैल्यू, ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन दोनों लाइन को टच नहीं करेगा। और ग्राफ इंक्रीजिंग है। x को 0 डाल के क्या आ रहा है जरा देखना। x को 0 डाल के क्या वैल्यू आएगी? -7/4, है ना। x को 0 डाल के y की वैल्यू यहाँ से पता लग रही है, -7/4 यहाँ पे कहीं होगा। ये ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इसकी शक्ल इस तरह से कुछ बनेगी। इंक्रीजिंग, पहाड़ पे चढ़ना है, ये इसको इन्फिनिटी पे टच करेगा। y की वैल्यू कभी भी 2/5 नहीं हो सकती, तो ये भी इसको इन्फिनिटी पे टच करेगा। इतना पार्ट इसका बन जाएगा ग्राफ का। और दूसरा पार्ट कहाँ पे आएगा? दूसरा पार्ट इस यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, इस वाले स्पेस में। हम्म। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इतना ये इसका, ये बेसिकली हाइपरबोला है, इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। सिर्फ -4/5 पे डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज इसे कंटिन्यूअस फंक्शन। ग्राफ हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। जैसे जो नॉर्मल सिंपल हाइपरबोला होता है जो तुमने फिजिक्स में भी किया होगा, वो ये होता है। एक तो होता है y = 1/x, इससे हाइपरबोला। 1/x का मतलब जब x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जब x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये इसका ग्राफ है। लेकिन अगर y -1/x होगा तो जब x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। दिस एग्जिस्ट इन लाइक दिस। तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा r-0। इनवर्स फंक्शन निकालोगे तो वो भी वही होगा, रेंज भी इसका r-0 होगा। Excuse me, sir. यस। Sir, so in this question that we've done, in which we've got y = 2x - 7 वाला, उसमें ये जो हमारा ग्राफ बना है
can it be like the origin basically from 0, 0 has shifted to like yes, minus? yes, 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 that's right. वही होगा, ठीक है. यहाँ पे शिफ्ट हो गया. तो ये जो पॉइंट है, इट इज -4/5, 2/5, तो वो वहां शिफ्ट हो गया. ठीक है. नेक्स्ट लिखो इवन एंड ऑड फंक्शन. इवन ऑड फंक्शन. अब तुम्हें रेंज निकालना आ चुका है, डोमेन निकालना आ चुका है, तो वी कैन इजीली डिस्कस बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे फाइंड करोगे, बिकॉज बाइजेक्टिव फंक्शन हमने किया था समथिंग 1 1 एंड ऑन टू. तो भी करते हैं. तो अगर कोई फंक्शन है a to b, तो हमें ये अगर फाइंड करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो पहले हम देखेंगे 1 1 है या नहीं है. उसके 3 मेथड तुम्हें मालूम है. फिर हम देखेंगे उसका रेंज निकालेंगे. अगर रेंज को डोमेन के इक्वल आएगा तो वो ऑन टू बन जाएगा. और जब दोनों होगा तो वो बाइजेक्टिव बन जाएगा. तो अगर तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है गिवन फंक्शन ऑन टू है, बाइजेक्टिव है या नहीं है, सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे. फिर उसके बाद रेंज निकालेंगे. अगर रेंज बाय कोडोमेन के बराबर आता है, मतलब वो ऑन टू भी हो गया. तो फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू इज बाइजेक्टिव फंक्शन. बट उसके पहले इवन और ऑड फंक्शन कर लेते हैं. इवन फंक्शन. व्हाट इज इवन फंक्शन? अगर किसी फंक्शन में हम x को -x से रिप्लेस कर दें and the function remains the same, then we say it is even function. In a function, if you replace x by -x and the function remains unchanged or the same, it is said to be even function. इंटीग्रेशन में भी काम आएगा ये. कोई नजर में है तुम्हारे ऐसा फंक्शन जिसमें x को अगर -x डाल दें तो सेम ही रहेगा? or less. और f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना? f of x इज इक्वल टू mod x. f of x इज इक्वल टू cos x. cos में अगर x को -x से रिप्लेस करेंगे, इट विल बी द सेम ओनली, राइट? x to the power 4. For that matter, f of x is equal to x to the power even number. ये सारे के सारे इवन फंक्शंस हैं, क्योंकि इन फंक्शन में अगर तुम x को -x से रिप्लेस करोगे तो कुछ नहीं होगा. इट विल बी द सेम ओनली. देखो चेक कर लो, सेम आ गया. तो ऑल दीज आर इवन फंक्शन. जरा इनका ग्राफ पे नजर डालो. एक्स स्क्वायर मॉड एक्स कॉस एक्स का ग्राफ जरा देखो. कुछ आइडिया लग रहा है तुम्हें क्या खासियत है इनके ग्राफ में? लुक एट द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स एंड कॉस एक्स. हम्म, कुछ पता लग रहा है? मिरर होते हैं वो. मिरर. यस. तो ये लोग अपने इमेज देखते रहते हैं मिरर में, हैं? अर्शिया नहीं. बोल रही कि अपनी, ये लोग अपना मिरर में इमेज देखते रहते हैं. नहीं सर. यू राइट. दिस इज पैराबोला. सेम ग्राफ. इसका मिरर इमेज इधर है. वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक होते हैं. जितने भी इवन फंक्शन है दे आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. इतना ही ग्राफ इधर बन जाएगा. लुक एट द cos x. cos का मैंने इतना ग्राफ बनाया है, ठीक है? cos का मैंने इतना ग्राफ बनाया, तो अदर साइड विल बी लाइक दिस. बना लो.
इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में यूज करेंगे इवन फंक्शन को। इंटीग्रेशन हो गया शुरू। Suppose you want to integration basically gives us area under the graph। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करें और वो फंक्शन इवन फंक्शन हो, तो इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। तो इफ आई इंटीग्रेट दिस फंक्शन, तो ये एरिया आएगा और फिर ये भी एरिया आएगा, है ना। ये दोनों एरिया इक्वल है बिकॉज ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो इफ आई इंटीग्रेट अ फंक्शन माइनस ए टू ए, मुझे ये एरिया मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, बट दिस इज सिंपली 2 times 0 to a, isn't it? This plus this is twice of this because दोनों एरियाज इक्वल है। तो ये एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। whenever you have even function, integration minus a to a will be always 2 times 0 to a fx dx। तो अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स वुड बी 2 times 0 to a। इवन होने की वजह से ये एरिया एग्जैक्टली उसके इक्वल हो जाता है। तो वाई टू हैव लिमिट माइनस ए टू ए, यू कैन ट्वाइस इट एंड 0 to a। इतना एरिया निकाल के उसको डबल कर दो। तो इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, मेरा कुछ गड़बड़ है? No, sir. ठीक है, आगे बढ़। हाँ, तो इवन का फंक्शन की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। नेक्स्ट इज लिखो ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन क्या होगा भाई? ईरा बोल रही है जो ऑड देखने में लगे वो ऑड है ना। यही हुआ, जो ऑड लगे देखने में ऑड फंक्शन। सो ऑड फंक्शन में if you replace f by x by minus x, it becomes negative of the function, or f of minus x plus f of x is always 0। ये दो चीजें हैं। if you replace x by minus x, the function become negative of the original function। जब भी ऑड फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, चुपके से एक्स का माइनस एक्स डाल दो। अगर फंक्शन नेगेटिव हो जाता है, इसका मतलब वो, यस अनुज, एक्स क्यूब इज एन ऑड फंक्शन। यस, एक्स क्यूब ऑड है, देखने में भी ऑड लग रहा है। tan साइन, ये ऑड फंक्शंस है। इवन एक्स की ऑड पावर जितनी भी होंगी सारे ऑड होंगे। ऑल दीज आर ऑड फंक्शंस। समटाइम्स दिस इज ऑल्सो क्वाइट यूजफुल। तो अगर एफ ऑफ एक्स में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब इज एफ ऑफ एक्स, तो हमारा वो रिजल्ट आ गया। या यू कैन से एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स 0 हो गया। तो ये ऑड फंक्शन की खासियत है। जरा एक्स क्यूब tan x एंड sin x के ग्राफ पे नजर डालो। लुक एट द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब tan x एंड sin x। क्या पता लगता है उससे? एक्स क्यूब का ग्राफ किया था हम लोगों ने। Negative of each other, like हम्म, opposite. हाँ, ये एक्स क्यूब था
tan x का भी ग्राफ थोड़ा सिमिलर ही था इससे. What was sin x? तो ऑड फंक्शंस हमेशा ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होते हैं. ऑड फंक्शन आर सिमेट्रिक इन द ऑपोजिट क्वाड्रेंट. इसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. अगर पहला ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका दूसरा पार्ट थर्ड में होगा. पहला अगर सेकंड में तो दूसरा फोर्थ में होगा, एंड वाइस वर्सा. सो ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक in the opposite quadrant, or you can say they're symmetric about the origin. Odd functions are symmetric about origin. अब ये कैसे हेल्प करेगा हमें इंटीग्रेशन में, वो देखते हैं. सपोज किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं -a to a. तो we'll get this area and we'll get this area also. अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, एरिया बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, एरिया अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है. ठीक है, एरिया बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा एंड अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा. तो ये जो एरिया है बिलो एक्स एक्सिस वो नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, एंड दोनों एरिया इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज, साइन डिफरेंट है. तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे किसी ऑड फंक्शन को -a to a, तो उसका आंसर क्या आना मांगता है, 0. तो -a to a fx dx इज 0 अगर f of x इज एन ऑड फंक्शन. अगर f of x ऑड फंक्शन होगा तो -a to a इंटीग्रेशन हमेशा 0 आएगा. जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेट -3 π/2 to +3 π/2 साइन x dx. दिस नो पॉइंट ऑफ इंटीग्रेटिंग इट. हमें मालूम है ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, लिमिट -a to a, उसका आंसर क्या होना मांगता है, 0. अगर एक और इंटीग्रेशन दे रहा हूं तो मैं -10 to 10, ठीक है, -x5 +2x³ -4x dx, ये कोई फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करो. तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, वैल्यूज डाल रहे हो, पागल हो गए, मिस्टेक हो गई कुछ, ये डायरेक्टली 0 आएगा, कुछ करना ही नहीं है हमें. क्यों, ये ऑड है, ये बचपन से ही ऑड था, -a to a 0 हो गया. तो ऐसा हो जाता है कभी कभी. MCQs में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. पता लगा तुम लोग उसको सॉल्व कर रहे हो, वैल्यूज डाल रहे हो, कहीं सिली मिस्टेक हो गई, नॉन जीरो आंसर आ गया, बट एक्चुअली विदाउट सॉल्विंग यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. एक्स की ऑड पावर हमेशा ऑड होगी. ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑड है इवन है. इसमें कोई डाउट है, बड़े आगे. किरण, कुछ आशा की किरण नजर आ रही तुम्हें इसमें, नहीं, नहीं आ रही नजर, क्यों, मैथ्स पसंद नहीं है. हाँ, इंटीग्रेट करके वैल्यू डालो तब भी 0 आएगा, उसमें टाइम कौन वेस्ट करेगा. और दूसरी बात, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर कोई फंक्शन ऑड नहीं है तो इवन ही होगा, इवन नहीं है तो ऑड होगा, ऐसा नहीं है. कोई फंक्शन नीदर भी हो सकता है. तो जो इवन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करे, सपोज ऑड की भी ना करे, इसका मतलब वो नीदर है.
ऑड इवन बताना है, पहले इतने क्वेश्चन कर लो। क्या उसमें इतने गुस्से में क्यों देख रही हो? दिखाई दे रहा है? एक्स को -x से रिप्लेस करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। अगर fx आ रहा है वापस से तो इवन है, -fx आ रहा है तो ऑड है, कुछ भी नहीं आ रहा तो मतलब नीदर आ गया। पहला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। x को -x से रिप्लेस किया तो ये का -x, ये होगा साइन ऑफ -x, तो f ऑफ -x क्या आएगा? -x, साइन x में माइनस साइन बाहर आ जाता है तो ये जाएगा प्लस, ये होगा x इंटू साइन एक्स। उड़ी बाबा, ये दो बाबा सेम हो गया। इसका मतलब इट्स इवन फंक्शन। देखो x ऑड था, साइन x भी ऑड था, दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है, साइड में लिख लो। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज ऑलवेज इवन। अनुज तुम्हारा एक आंसर सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं फर्स्ट फोर में। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन ऑलवेज ऑड, सॉरी इवन। जैसे होता है दो माइनस को मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस हो जाता है। डालो, क्या आएगा? क्यों, एक्स है क्या उसमें क्या? फिर प्रॉपर्टी देखो ना तुम, ये तो सबको पता लग गया। एक्स ऑड है ना, लेकिन उसकी इवन पावर है तो वो इवन हो जाएगा। एक्स को अगर -x लिखा तो वो सेम आ रहा है, तो ये भी इवन है। लिख लेना आगे इसके, इवन पावर ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन। इवन पावर ऑफ एन ऑड फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। अर्शिया थर्ड वाला चेक करो। देखो, थर्ड इज ए कांस्टेंट फंक्शन। अगर हम x को -x डालें तो राइट साइड में कुछ चेंज थोड़ी होगा, वो तो वही रहेगा। ये बहुत जोर से इवन है। अ कांस्टेंट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। इसका फोटो देख लो एक बार। y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसा बनेगा भाई? अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, एम आई राइट? तो ये तो बहुत जोर से सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। ये ग्राफ, अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। लिख लो, अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। यस ईरा। फोर्थ, सेम कॉन्सेप्ट, ऑड फंक्शन की इवन पावर इवन होता है ना? फोर्थ में ऑड फंक्शन की इवन पावर इवन हो गया। फिफ्थ करो अब। ईरा लास्ट फिफ्थ वाला कैसे किया? सर एक्स पे -x डाल के ट्राई करके देखा था। तो क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। हाँ माइनस ही आ रहा था। ओके, फिफ्थ चेक करो भाई।
फिफ्थ वाले में अगर हम x को -x से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आएगा 2 raised to power -x, 2 raised to power x, 2 raised to power -x प्लस 2 raised to power x। सही है। माइनस साइन ऊपर से कॉमन ले लो, जरा इसको देखो क्या है ये तो fx आ गया। ये देखने में भी ऑड सा लग रहा था मुझे। ये ऑड फंक्शन है। सिक्स्थ बताओ, सेवेंथ बताओ। अनुज सेवेंथ इवन कैसे आ रहा है तुम्हारा? देविशी, देविशी सिक्स किया है तुमने या ऐसे ही बिना सॉल्व किए बता दिया? सर सेवेंथ में इज इट साइन की पावर 7x यस, और इज साइन, इट साइन 7x? साइन टू द पावर 7x। देविशी तुम्हारा आंसर कैसे आ रहा है बताओ मुझे, सिक्स सर वाले। हाँ, यस सर, सर 1 - x था, उसे 1 + x हो गया। राइट। और और अपॉन और फिर लॉग की प्रॉपर्टी से log 1 + x माइनस log 1 - x, फिर माइनस कॉमन लिया तो वापस से सेम प्रोडक्ट, हम्म वो चलो बाहर माइनस था। यस, अदरवाइज log a इज ऑलवेज -log 1/a, वो भी यूज कर सकते हो तुम, ठीक है। गुड। हम्म करो करो, नहीं जब भी लॉग का क्वेश्चन आएगा ना, तो यू हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल। यू कैन यूज दैट अदर प्रॉपर्टी ऑल्सो, ऑड वाली। लॉग के फंक्शन जनरली ऑड होते हैं। f(-x) किया हमने तो क्या बन गया ये? f(1 + x) ओवर 1 - x, ठीक है। नाउ या तो मैं ये इसमें ये कर सकता हूँ कि आई कैन फाइंड f(x) प्लस f(-x), इन दोनों को ऐड करके देखता हूँ क्या आ रहा है। तो ये आएगा log 1 - x ओवर 1 + x प्लस log 1 + x ओवर 1 - x, दोनों को ऐड कर दिया मैंने। log a प्लस log b कितना होता है? log a इंटू बी। ये आ गया। ये हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली, ये कट गया, क्या बचा? log 1। log 1 कितना होता है? 0। f(x) प्लस f(-x) इज 0, therefore this function is odd। ये ऑड फंक्शन है। दूसरा तरीका ये था, इसको हम लिख सकते हैं -log(1 - x ओवर 1 + x। ये कैसे लिखा मैंने? log a इज ऑलवेज -log 1/a, उल्टा हो जाता है। log a को यू कैन राइट -log 1/a। यू कैन यूज दिस, दिस इज -fx। तो ये ऑड हो गया। सेवेंथ में ये ऑड है, ये इवन है। प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन ऑलवेज ऑड।
प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन इज ऑलवेज ऑड, जैसे कि होता है ना, माइनस प्लस का प्रोडक्ट माइनस होता है। एक फंक्शन ऑड है, एक इवन है, ऑड इवन का प्रोडक्ट हमेशा ऑड आता है। जैसे ऑड ऑड का इवन था, तो ऑड इवन का ऑड होता है। नेक्स्ट देखो, एट्थ वाला। इसको भी इसी प्रॉपर्टी से यूज कर लो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस। इसमें अगर तुम एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करोगे, हाँ, तो ये आएगा लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन रहेगा, है ना, ये प्लस एक्स हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लॉग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स प्लस लॉग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी यूज करो, लॉग ए इंटू बी, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। लॉग वन तुम्हें मालूम है कितना होता है, log 1 is 0, it is also odd। तो ये फंक्शन भी ऑड फंक्शन है। नाइन्थ बताओ। एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 10। लगाओ प्रॉपर्टी लगाओ, मुझे मालूम तुम लोग बहुत थक चुकी हो आज। शनाया ये मेहनत काम आएगी, हार्ड वर्क हमेशा काम आता है। किरण तो बहुत मेहनत कर रही है, हाँ, घर पे जाने के बाद 2 घंटे और पड़ेगी अभी, है ना। हम्म। तो नाइन्थ वाले में इफ यू फाइंड एफ ऑफ माइनस एक्स, तो क्या आ रहा है, माइनस एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 10, राइट। इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज इट्स नॉट इवन। दिस फंक्शन इवन नहीं है ना। एट द सेम टाइम एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, इज इट जीरो। कितना आ रहा है दोनों को ऐड करके, जीरो नहीं आ रहा है, तो मतलब ये ऑड भी नहीं है। तो फिर ना ऑड ना इवन, इट्स नीदर। दिस फंक्शन इज नीदर ऑड नॉर इवन। ये खाली पीली टाइम वेस्ट करने के लिए था, इट्स नीदर फंक्शन। ठीक है।
ऑड इवन अगर पता लग जाता है तो ग्राफ प्लॉट करने में इजी होता है, हमें पता लग जाता है कि भाई अगर इवन है तो आधा प्लॉट करो वाई एक्सिस के अराउंड, उसको फिर सुपर इम्पोज कर दो, ऑड है तो ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सुपर इम्पोज हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑड इवन। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करो, सपोज इज अ फंक्शन which is defined from set A to set B, and the function is x plus 2 divided by 3x plus 2 divided by 5x minus 4. It's been given that this function A is r minus 4 by 5 and the codomain has been given as r. तुम्हें ये बताना है, is this function 1 to 1, 1 to 1 है, many 1 है, on 2 है, in 2 है, क्या है? This is 3. ए तुम्हें दे रखा है, ए तो डोमेन हो जाता है स्ट्रेट अवे, है ना। पहले 1 to 1 निकालेंगे। तो 1 to 1 निकालने के 3 तरीके हमारे पास थे। डेरिवेटिव मेथड था, एक एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू वाला था, एक था ग्राफ। तो ग्राफ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हो तो सकता है, बट डेरिवेटिव से कर सकते हो। इसको डिफरेंशिएट करो एक बार और देखो क्या होता है। डिफरेंशिएशन हमको आता है, हम्म। अच्छा ठीक है। अदिति क्या हुआ, तुमने कोई आंसर नहीं किया? ओके। कुछ है सर, हम्म। वो थोड़ा लेट ज्वाइन की तो। अच्छा, हम्म, कैमरा भी ऑन नहीं किया तुमने? हम्म। डिफरेंशिएट करो, जल्दी से बताओ क्या हो रहा है। रैन यू आंसर इज करेक्ट। ऑन टू भी चेक करो। तो इसको डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स, क्वेश्चन रूल लग जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विच इज 3 माइनस साइन न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 5। क्या आ रहा है ये? माइनस। ओके, तो 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव है, माइनस 22 है, इसका मतलब इट इज ऑलवेज नेगेटिव। द डेरिवेटिव इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। इसका मतलब इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब ये 1 to 1 तो हो गया। 1 to का ना इंजेक्टिव, इसे दिस फंक्शन इज 1 to 1। इसको तुम चाहो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू से स्टार्ट करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, और फिर जो तुम लोगों ने एनसीईआरटी में किया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने के बाद एंड में आंसर आता है एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। ये 1 to 1 तो है। ओके रैन। हाँ, लेकिन ये मेथड हर जगह काम नहीं आता, तो डेरिवेटिव इज अ गुड मेथड। और ये भी वैसे इससे भी पता लग जाता हमने कि डेरिवेटिव ग्राफ से भी कर सकते, बट लंबा है मेथड। दिस इज 1 1, ये हमारा क्लियर हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या करना है? ऑन टू के लिए विल फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, है ना।
तो अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आएगा तो ऑन टू है, नहीं तो मोन टू। तो इसका रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज कैसे निकालोगे? इनवर्स फंक्शन करो और रेंज बताओ क्या आ रहा है। फंक्शन का इनवर्स निकालो x इन टर्म्स ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 5x y माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो x कॉमन इन दोनों में से 5y माइनस 3 इक्वल्स टू, राइट, तुम्हारा इनवर्स फंक्शन आ गया। इनवर्स फंक्शन आ रहा है y इज इक्वल टू 4y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5y माइनस 3। अब इनवर्स फंक्शन का डोमेन निकालना इजी है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो y की वैल्यू 3/5 नहीं होगी। रेंज हमें मिल चुकी है, रेंज है ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट, ये रेंज आ चुका है फंक्शन का। तो अब क्वेश्चन ये है, इज दिस रेंज इक्वल टू कोडोमेन और नॉट? दे आर नॉट इक्वल। कोडोमेन बड़ा है, कोडोमेन पूरा R था, जबकि रेंज छोटा है। इट इज नॉट ऑन टू, इट इज इनटू फंक्शन, इट इज 1 1 इनटू। तो दिस इज 1 1 इनटू। range of the function is not equal to codomain. अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भाई what should be the codomain so that the function is onto. कोडोमेन क्या होना चाहिए ताकि ये onto बन जाता, तो सीधा सीधा बी को हम रेंज के बराबर कर देते हैं। तो अगर रेंज इसका ये सर तो होता, मतलब उस केस में कोडोमेन शुड बी इक्वल टू द रेंज, राइट? यस, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फाइंड द कोडोमेन सो दैट द फंक्शन इज onto फंक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एमसीक्यूज फंक्शंस के। पढ़ लेना है सारा, आज की क्लास, पुरानी क्लास। अच्छा, एमसीक्यू पहले एक और चीज बचती है, पीरियड, पीरियड ऑफ ए फंक्शन, वो भी कर लेंगे। थोड़ा सा है वो, 10-15 मिनट उसमें लग जाएंगे हमारे, फिर एमसीक्यूज करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। और फिर उसके बाद तुम्हारा फेवरेट टेस्ट होगा। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑल्सो। बुकलेट मिली थी ना तुम लोगों को, कबाड़ी को तो नहीं दे दी, पढ़ी है ना, उनको पढ़ना शुरू करो अब, ठीक है। एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। Okay. Thank you, Thank you, sir. sir.